सबको जय मसीह की। ग्रीटिंग्स टू each one of you. हमेशा आराधना करना सबसे अच्छी बात. Worshipping God all the time is very beautiful thing. We are living in a world. We have two options, whether to worry or to worship. हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे पास दो चीजें करने के लिए, एक तो परेशान रहें या प्रस्तुत करते रहें. परेशान रहने से कोई भी चीज अच्छी नहीं होने वाला है, लेकिन प्रस्तुत करने से सब कुछ अच्छा होना है. When we are worried, nothing good will happen, but when we are worshiping, everything good will happen. प्रभु का वचन हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है इन दिनों में. आज इस पैंडेमिक की वजह से बल्कि थोड़ी थोड़ी अभी सब कुछ खोलना शुरू हो गया है, लेकिन लोगों के जीवन में खुशी की जो आशा है वो उतना नहीं है. Today, though the world is opening a bit from the pandemic, but the real joy is not in the lives of people. Today I will talk to you about how do we live with God's joy. मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि प्रभु के आनंद में हम कैसे आनंदित रह सके. आनंदित रहना ही सबसे अच्छी बात है. To be joyful is the best thing we can do. Bible says that the joy of the Lord is our strength. प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर में आनंदित रहना ही हमारे लिए बल है. लेकिन दुनिया की खुशियां और परमेश्वर की खुशियां में जमीन और आसमान की अंतर है. But the joy that comes from the Lord and the joy that we receive from this world has difference like heaven and earth. इन तीन बातों के जरिए से परमेश्वर आप लोगों के जीवन में खुशियों का सोता बहाए. मैं आज I will talk to you about these three things that will help you to see the streams of joy and happiness comes in our lives. Because without being joyful, we cannot be victorious in any circumstances. बिना आनंद से, बिना खुशी से हम किसी भी परिस्थिति में हम जयवंत नहीं हो सकते, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर लोग हैं. परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहे. Because we are the people who are more than conquerors, God wants us to live with joy all the time. God is talking to us like this. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. ऐसे लिखा गया है उसके आयत 6 से लेकर 8 तक, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली. आज जो मैं बात करना चाहता हूं कि नम्र रहना ही आनंदित होने का मूल है. नम्र रहना ही आनंदित होने का सीक्रेट है. To remain in humility is the secret of happiness and joy. आज लोग सोचते हैं कि मेरे पास अगर ज्यादा पैसा हो जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा हर काम सफल हो जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरे परिवार के सारे लोग अगर अच्छे रहेंगे तो हम खुश हो जाएंगे. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सारे बातें होने के बावजूद भी असल खुशी जो है हमारे जीवन में से गायब ही रहेगा. Today people think if I have more money, I will be happy. People think if I will have all my work successful, then I will be happy. People think if everyone in my family stays united, then I will be happy. But let me tell you, even having all these things, there will be something lacking for you to be happy or joyful. Now, we can learn from Jesus Christ. He is giving us the secret. Happiness comes from harmony. And harmony comes from humility. जो हम सोचते हैं कि अगर हम सब एक रहेंगे, सबके जीवन में एकता रहेगा, कोई किसी का खींचातानी नहीं करेगा, ऐसे हम सोचते हैं ना. We always think like if everybody stays together, nobody will backbite anybody, nobody will pull anybody's leg, then everybody will be happy. Let me tell you that the happiness, the joy that comes from it, the आनंद जो एकता में आता है, वो एकता सिर्फ और सिर्फ नम्रता से ही आता है. ह्यूमिलिटी, नम्रता ही वो एक चीज है जो कि हम सबको एक करके रख सकता है. आज हर एक के जीवनों में ईगो है. Today everybody is walking with ego.
Today the world has become the place with individualistics. आज दुनिया ऐसे लोगों से भरा हुआ है जहां पे लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं. Jesus is our ultimate example of humility. जो नम्रता की बात हम करते हैं उसका सही उदाहरण सिर्फ यीशु मसीह ही है. यीशु मसीह से जब हम नम्रता की उदाहरण लेते हैं हम जो है सचमुच नम्र हो जाएंगे. आज बहुत सारे लोग नम्र का ढोंग करते हैं लेकिन नम्र नहीं रहते हैं, अंदर गुस्सा भरे रखते हैं. Today so many people pretend like they are humble but inside they are keeping anger. So if we want to be happy, humble person, you have to learn to ask yourself, what would Jesus do? अगर हम चाहते कि हम सचमुच नम्र हो जाएं और जयवंत और खुशी के जीवन बिताएं तो हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से सवाल कि यीशु क्या करता अगर आजकल की दुनिया में वो होता. We need to ask ourselves, if Jesus was in this world today, what he would have done. What would Jesus do in this problem? आजकल की जो पैंडेमिक चल रहा है, इन पैंडेमिक के समय अगर यीशु दुनिया में होता तो वो क्या करता है. What would Jesus do for the person who is hurting? आज जो इस पैंडेमिक के टाइम पे लोग जो दर्द में दुख में पड़े हैं, अगर यीशु इस दुनिया में होता तो वो क्या करता. क्या आपने कभी सोचा है? Have you ever thought about it? What would Jesus do at the office, at the workplace, at the businesses where we and also at homes? अगर आज यीशु हमारे साथ इस दुनिया में होता तो ऑफिसों में अगर वो जाता तो वो क्या करता, घरों में वो कैसा रहता, या रास्ते में बाहर जब भी वो जाता तो वो क्या करता है. क्या आपने कभी ये सोचा है? थोड़ा सा मेरे साथ पिक्चर करिए. जस्ट ट्राई टू इमेजिन विथ मी दैट जीसस इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट टुडे इन 2021. कि इस 2021 में यीशु हमारे इस दुनिया में चल रहा है, वो क्या करता. व्हेन यू आस्क अबाउट जीसस then the answer will be always one of the specific character, that is humility. अगर हम यीशु मसीह के बारे में अगर हम सोचते आज दुनिया में वो कैसा रहता तो सबसे पहली बात होता है कि वो अपने नम्रता के साथ दुनिया में जो है बरकत को लेकर आता. Everyone calls themselves Christians but no one wants to be like Christ. आज हर एक लोग जो है अपने आप को मसीही कहना पसंद करता है और उसमें घमंड भी करता है, लेकिन यीशु के समान जीना कोई चाहता नहीं है. हाँ, प्रार्थना तो कर देते हैं, प्रभु जी मुझे तेरे समान बना. People pray, Lord, make me like you. People just think in the church that I want to be like Jesus. लोग चर्च में आकर उसके बाद सोचना शुरू करते हैं कि मैं भी यीशु के समान हो जाऊंगा, लेकिन कोई भी ये प्रायोरिटी नहीं रखता है कि मुझे यीशु के समान नम्र होना है. Nobody keeps it as a priority that I should be humble like Jesus. Have you? You know, I asked somebody, why you can't forgive that person, and he said, I'm not Jesus, I can forgive. मैंने किसी को पूछा आप माफ क्यों नहीं कर देते, उसने बोला मैं थोड़ी मसीह हूँ कि मैं माफ कर दूंगा. And people act like this. People pray, Lord, make me humble, but when it comes to be humble, they say, I cannot be Jesus. लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आपके साथ बनाओ, लेकिन जब प्रभु के साथ बनने के टाइम आता है तो वो कहते हैं नहीं हम थोड़ी मसीह हो सकते हैं. We are the image of God. हम प्रभु के शकल में बनाए गए हैं तो उसके समान हम बन सकते हैं. We are made in his image so we can be like him. That's why he came to this world. He gave his Holy Spirit, the same Spirit that was in Christ Jesus. He has given us his Spirit. People just justify themselves. No, I cannot. अगर यीशु मसीह ने हमें अपने शकल से बनाया हुआ है और वही आत्मा हमें दिया है जो कि उसके अंदर है, और तो हम उसके समान जरूर हो सकते हैं. लेकिन लोग आज क्या करते हैं, अपने आप को बस धर्मी ठहरा देते हैं. नहीं यार, ये है वो है, बहाना ले लेते हैं. पहली बात, जब नम्र होना है, अगर हमें नम्र रहना है तो सबसे पहली बात हमें सीखना है कि हम जिस बात का डिजर्व करते हैं उसका डिमांड नहीं करना है. फर्स्ट वन, वी शुड नेवर डिमांड ऑफ व्हाट वी डिजर्व. हम कभी भी अपने हक की बात को नहीं करना है. मेरा ये पोजीशन था, मुझे नहीं मिला. आई वाज सपोज्ड टू बी इन दिस प्लेस बट आई डिडंट गेट इट. वी शुड नेवर डिमांड व्हाट यू थिंक यू डिजर्व. हमें कभी भी इस बात की दावा नहीं करना है, डिमांड नहीं करना है कि मुझे तो ऐसा करना चाहिए, मेरे साथ तो ऐसे होना चाहिए था, मुझे तो ये बात मिलना था. डिजर्व, आई डिजर्व बिकॉज आई एम क्वालिफाइड, आई शुड डिजर्व द फर्स्ट सीट. आई एम एजुकेटेड सो आई मस्ट डिजर्व दैट पर्टिकुलर थिंग. मैंने बहुत पढ़ाई की है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे जो है वो स्थान मिलने का मैं हकदार हूं. बाइबल सेज in Philippians chapter 2 verse 6 that we have read, though Jesus was God, though he came from heaven, but he chose to become like man.
so that he can take away our sins and give us salvation. यीशु मसीह जबकि वो स्वर्ग में ही था, वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा. He deserved everything, but he chose to be rejected. He chose to be forsaken. He chose to be persecuted. He chose to be mocked. प्रभु यीशु मसीह के पास सारे वो हक था, वो डिजर्व करता, परमेश्वर है, एक इशारे में वो सब कुछ खत्म कर सकता था, उसके खिलाफ आने वालों को वो हरा सकता, लेकिन वो हमारे लिए अपने आप को इतना नम्र किया कि वो सताए जाने को पसंद किया, वो हमारे लिए दुख सहने को पसंद किया, वो हमारे लिए मजाक सह जाना पसंद किया. ह्यूमिलिटी इज नॉट जस्ट फॉर 1 मिनट. नम्रता सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं है. डू यू नो हाउ काउंटर कल्चरल इट इज टू गिव अप योर राइट टू समथिंग? क्या आपको पता है कि जो हमारे हक में है उसको छोड़ देना कितना कष्ट की बात है? मैंने तो किसी की बुराई नहीं की, मैं क्यों गाली सुनूं? I have not done anything wrong against anybody. Why I should be blamed? We ask that question. We ask that, right? Why am I the only one to take care of everybody? मैं ही क्यों सबका मैं संभाल केयर करूं? I don't deserve this kind of rejection. लोग मुझे त्याग दे, ये मैं इसका मैं लायक, इसका मैं हकदार नहीं हूं, मुझे लोग समझना चाहिए, हम सोचते हैं. We think people should acknowledge me. To be humble is to let go of what we deserve. नम्र बनने का मतलब ये है कि हम किस बात का हकदार है उसको भी छोड़ देना. क्या मैं आपको बताऊं, अगर हम अपने आप को किस किस बात के डिजर्व सोचते हैं, हमारे क्वालिफिकेशन, हमारे सोशल स्टेटस, हमारे ज्ञान और हमारे नॉलेज के मुताबिक अपने को बोलते हैं कि आई डिजर्व दिस. We start thinking that I deserve this based on our education, based on our look, based on our knowledge, based on our experience. But let me tell you, in reality, what do we deserve? We deserve only the wrath of God. सच्चाई में अगर मैं आपको बोलूं, हम किस बात का हकदार हैं? प्रभु का क्रोध. क्योंकि हर रोज हम पाप करते हैं. अगर हम अपने हक को मांगना शुरू करें, हमारा हक क्या है? हमारे हक में क्या हो सकता है? प्रभु की ओर से सजा. If you want to ask God, I need what I deserve, we will only receive the judgment and punishment. But that's why we should never demand of what we deserve, but we should let go of any of our accomplishment, but choose to be a blessing. इसलिए हम अपने आप में हमारी क्या खूबी है, हम किस बात के हकदार, उसको छोड़कर औरों के लिए बरकत बनने को हमें चुनना है. That's what is humility. Praying 100 hours will not make you humble. और that is not the sign of humility. 100 घंटे बैठ के प्रार्थना कर देना नम्रता का प्रतीक नहीं है. यह बाइबल के बारे में अच्छी ज्ञान रखना भी नम्रता की प्रतीक नहीं है. To have the knowledge of God and the knowledge of Bible is not the sign of humility. We may have everything. We may have knowledge, we have wisdom, but we have no humility. We don't have the image and likeness of God. हमारे पास, we might have the knowledge, we might have the wisdom, we might have everything. But if we do not have humility like Jesus, we are missing out so many things. To be happy, to be joyful, we need to give up what we deserve, but we need to be a blessing to others. We need to attain the mercy of God. हमें जीवन में आनंदित रहने के लिए हम क्या डिजर्व करते हैं उसको छोड़कर हमें प्रभु की रहम और प्रभु की कृपा में बढ़ते रहना है. प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि हम सब के ऊपर प्रभु का अनुग्रह मिले. Jesus came to this world so that all of us will receive the grace of God. Number 2, look for ways you can serve. नम्रता की जो प्रतीक यह है कि हमें अवसर को ढूंढते रहना है कि हम किस तरह सेवा कर सके, लोगों की मदद कर सके, प्रभु की सेवा कर सके. We need to choose, we need to look for ways that we can serve God, we can help people, we can be a help to people whomever we can. Jesus in verse 7 he says, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. We see here that Jesus, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Hallelujah. He wanted to serve. He said, Son of Man did not come to be served, but to serve. प्रभु यीशु ने कहा, मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं सेवा पाऊं, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया हूं.
Today everybody is saying, oh yeah, I want to serve, I want to serve, I want to serve wherever it is needed. आज लोग बोलते हैं जहां भी मेरी जरूरत है मैं सेवा करूं, लेकिन जब सेवा करने की बात बोलो तो वो अपने घमंड में करते हैं. But when we tell them to serve, they do it with pride. They do it to be acknowledged. वो इसलिए करते हैं ताकि लोग उनको पहचाने. They do it with having their names are on. इस तरह वो सेवा करते हैं कि अपने नाम को वहां पे छाप के, अपने नाम को बढ़ाने के लिए. If you want to be like Jesus, you have to learn to serve. अगर हमें यीशु के समान नम्र होना हम चाहते हैं तो हमें यीशु के समान सेवा करना जरूरी है. आजकल तो लोग सेवा करने के लिए सामने नहीं आते. Today people don't come in at front to serve. They think my money will be gone. Oh, I have to give. People think I have to give. If I come front, I have to give. लोग ऐसे सोचते हैं अगर मैं सामने आ जाऊं सेवा करने के लिए कहीं देना ना पड़ जाए. Today people don't even call their families. They think they have to give. Today आज लोग अपने परिवार के साथ रिश्ता भी नहीं रखते हैं कहीं हमें देना ना पड़ जाए. यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आ गया ताकि लोगों को, लूका उसका 4 उसका 18 में क्या लिखा गया है? Jesus left the heaven and came to this world. What do we read in Luke chapter 4 verse 18? He said, the Spirit of the Lord is upon me so that I will be the blessing to the prisoners, to the poor. प्रभु यीशु ने कहा मुझे अभिषेक किया गया है ताकि मैं बंधुओं को, गरीबों को, कुचले हुओं को मैं निकालूं. Jesus said, I came not to be served but to serve. यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए. हमें मौका ढूंढते रहना चाहिए कि मैं कैसा सेवा करूं. What is service? सेवा क्या है? सेवा ये नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं वो करें. सेवा वही है जो प्रभु हमसे कहता है कि हम क्या करें. Service is not something what I feel like doing. Service is something that God is asking us to do it. सेवा ये नहीं कि हमें कब और कहां पर करना है. सेवा ये है प्रभु जो हुक्म देता है वहां पर उसी वक्त करना है. Service is to do where and when God asks. We think service is doing whenever I want it. Service is not doing something to help the Lord. Service is doing what God has already done in your life. सेवा प्रभु की मदद करने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं है. सेवा ये इसलिए करना है कि प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी कर चुका है. ये दुनिया के धन, ये दुनिया के दौलत, ये दुनिया के शान और शौकत, ये सब कुछ बेकार है, मिट्टी, ये सब चला जाएगा. The name, the fame, the wealth of this world are nothing. They will all be gone. In the book of Ecclesiastes we read, everything is meaningless. सबोपदेशक में हम पढ़ते हैं सुलेमान राजा के जरिए से प्रभु कहता है सब कुछ बेकार है. सुलेमान राजा सब कुछ एंजॉय किया, दुनिया के सब कुछ उसके पास था. बड़े से बड़ा मकान, सबसे बड़े अच्छे चीज उसके पास था, हर जेवर उसके पास था, सोना चांदी सब कुछ भरा हुआ था, बुद्धि और ज्ञान भी था. लेकिन वो कहता है ये सब कुछ बेकार है. King Solomon had everything. He had knowledge, he had wisdom, he has wealth, he had everything that anyone can wish to have. But he says everything is meaningless. What are we running to? हम किसके तरफ भाग रहे हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद मैं सेवा कर पाऊंगा? आप नहीं कर पाएंगे. Do you think if I have all these things then I will help? I will serve? You will never. Seek opportunities, seek ways to serve. We need to continue to serve. We know that when Jacob went and stayed with his father-in-law Laban, then his uncle said, you need to work 7 years so that I can give you Rachel as your wife. याकूब जब अपने मामा के घर में जाकर रहना शुरू कर दिया तो उसका मामा लाबान उसको बोलता है कि तू अगर 7 साल मेरे घर में मेहनत करेगा तो मैं क्या करूंगा, तुझे मेरी बेटी रेचल जो है मैं तुझे दूंगा. But he works for 7 years, but at last he was cheated and he was given Leah instead. वो 7 साल काम करता है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, धोखा होता है, रेचल के जगह में उसको लिया दी जाता है. बाद में लिखा गया है कि याकूब रेचल को पसंद करता था लेकिन याकूब का मामा जो है उसको लिया को दे दिया. Jacob was liking Rachel, but Laban, the uncle of Jacob, gave him Leah. But what he did not ask, I deserve Rachel or I work for Rachel. He didn't say that I must only get Rachel.
याकूब ने ये नहीं कहा मैं तो राशेल के लिए जो है मैं मेहनत किया, मैं उसका हकदार हूं, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसने ऐसे नहीं पूछा। और ये उसने ये नहीं कहा क्यों मुझे मेरे साथ ऐसे धोखा किया जाता है, वो कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसा उसका अंकल लाबान ने कहा कि अगर रेशल चाहिए तो और 7 साल तू मेहनत कर। But Jacob did not do anything. He didn't demand what he deserved, or he did not stop serving. When his uncle said, if you want Rachel, then you must serve again 7 more years. Without any complaint, without any murmuring, without any hesitation, he served his uncle. बिना कोई बगावत करके, बिना कोई कुड़कुड़ाए, बिना कोई सवाल करके, बिना कड़वाहट रखकर वो और 7 साल सेवा किया अपने मामा का। सेवा बिना कुड़कुड़ाए किया जाने वाले को कहा जाता है सेवा। Without complaining when we help, that is called service. Without pride something is done, that is called service. घमंड के बिना जब हम सेवा करते हैं वही असल सेवा है। When we serve, when we do something without making any publicity of our name, that is called service. कोई नाम अपना ना दिखाकर जब हम लोगों की मदद करते हैं वो सेवा है। आजकल लोगों को खाना देते हैं या कुछ भी देते हैं, साथ में सेल्फी भी ले लेते हैं। Today people just give something and then take a selfie and put it in a Facebook. उन्होंने दिया होगा 1-2 परिवार को 10 रुपये का दे के 10,000 का लाइक्स लेना चाहते हैं। Today people just help probably one or two family or 1 kilo something and then take a selfie and wants to get Facebook like. They spend $10 and they want to get 10,000 likes. They are not serving. They are just putting the name of the Lord in vain. वो सेवा नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के नाम को बुराई में लेते हैं, परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं। They don't serve, but they make the name of the Lord ashamed in front of people. Are we looking for opportunity to serve, or are we looking for our name to be published so that we can serve? क्या हम सेवा करने के अवसर को ढूंढते हैं या हम ये सोचते हैं अगर मेरा नाम आएगा लिस्ट में तो मैं सेवा करूंगा? Let's look for ways to serve. When we serve, जब हम सेवा करते हैं परमेश्वर हमसे खुश होता है। असल नम्रता की प्रतीक यह है कि हम सेवा करें। The true sign of humility is we serve. Today people wants to command. आज लोग जो है लोगों को आदेश देना चाहते हैं, हे तू ये कर ये कर ये कर। आज लोग टीचिंग देना बहुत अच्छा जानते हैं। Today people wants to teach. Everybody wants to teach. Everybody wants to become preacher. Everybody wants to become pastor. But nobody wants to become a servant. आज हर कोई पास्टर बनना चाहता है, नाम के सामने पास्टर लिखना बहुत पसंद होता है। आज हर कोई रेवरेंट बनना चाहता है, हर कोई प्रचारक बनना चाहता है, लेकिन सेवक बनना कोई नहीं चाहता है। सर्विस इज समथिंग वेरी मच नीडेड। सेवा ही जरूरत है। आज अगर हम चाहते कि हम खुश रह सके, सेवा करें, दियो तो दिया जाएगा। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। सर्विस इज सैक्रिफिशियल। सेवा करना बलिदान है। कंजूस लोग कभी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। Stingy people will never go to the kingdom of God because Bible says it is better, it is easier for a camel to go into the hole of a needle, but it's hard for the rich. When Jesus said rich, he talks about the stingy people. प्रभु ने कहा है कि एक सुई के धागे के अंदर एक कैमल को जाना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन अमीरों को प्रभु के राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जब प्रभु कहता अमीर की बात नहीं करता है, वो जो धन के लिए मरते हैं उनके बारे में कहा जाता है, जो कंजूस होते हैं उनके बारे में कहा जाता है। That's why Jesus said, do not serve two master. इसलिए प्रभु ने कहा 2 मालिक का सेवा नहीं करना। हम अगर अपने लिए जितना भी करते हैं और सोचते हैं कि मैं सब कुछ किया, आखिरी में कुछ भी नहीं रहेगा साथ में। When we think, oh, I'm doing for myself, and at the end nothing will be there. That's why we need to spend our life in serving God, serving people. इसलिए हमें हमारे जीवन को सेवा में लगा देना चाहिए। यीशु मसीह पूरा समय उसका सेवा में बिताया। सेवा, अपने आप को कुर्बान करते तक सेवा किया। Jesus spent his life in serving. I thank God we have some people here who serve and they serve God's people. Sometimes they call me, Pastor, we are dropping some food for you. मैं खुश होता हूं जब लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी हम कुछ खाना आपके घर में लेके आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं, पास्टर जी हम भी उन परिवारों को आपके साथ मदद करना चाहते हैं। I appreciate them. When people say, Pastor, we want to help those people with you, I thank God that we were able to
become a channel of God's help to many people during this pandemic. I'm not bragging about ourselves, but I'm just encouraging you. Let us spend our life in serving. मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि सेवा करिए, जितना सेवा करे उतना कम है जो कि यीशु ने हमारे लिए कर दिया है। तीसरी बात, डू व्हाट इज राइट इवन व्हेन इट इज पेनफुल। नम्रता की प्रतीक ये है, नम्र यीशु के साथ नम्र होने का मतलब ये है कि हमेशा सही करे, उसमें कष्ट भी उठाना पड़े तो कष्ट उठाना पड़े तो भी सही ही करे। किसी ने आपके साथ बुरा किया फिर भी आप उनके साथ सही करें। Somebody did wrong to you, but still you do it good. That is what is true humility. We read in verse 8, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. यीशु मसीह ने क्या किया? मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। When everything is good, when everybody is good, we like to be good. जब सब अच्छे होते हैं, जब सब कुछ ठीक रहता है, हम भी अच्छे रहते हैं और हम भी अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर जब हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाते हैं, जब लोग बुराई करना शुरू करते हैं, क्या हम तब भी सही करना चुनेंगे? When people talk against you, when things are not going right with you, do you still want to do good? That's what is the true humility. Jesus is the ultimate model of humility. यीशु मसीह सबसे अच्छा प्रतीक है नम्रता का। When you follow Jesus' example, we'll get highest honor. जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते रहते हैं, हमें आदर मिलेगा। दुनिया में भी परमेश्वर ने हमें आदर दिलाएगा और दुनिया के बाद भी परमेश्वर हमें आदर दिलाएगा। God will honor us here on this earth, at the same time also in the kingdom of God. Today people are following God so that they would be right. आज लोग प्रभु के पीछे चलते ताकि वो सही रहे, लेकिन प्रभु के पीछे चलने से, प्रभु के समान बनने से हम राइट हो सकते हैं। But when we want to become right and following God, we need to do what God did, what Jesus did. Do what is right even if it is painful. आपको पता है, मैं याकूब के बारे में कह रहा था, याकूब ने 7 साल मेहनत कर चुका था, अभी और 7 साल उसको मेहनत करना है। वो दर्दनाक है, वो कह सकता था ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। I was talking to you about Jacob. Jacob could have tell his uncle that it is painful for me to do. It is not right for me to do. It is not. It is not something good that is happening with me. But what he did what is right, even though it was painful. He didn't complain. उसने विद्रोह नहीं किया. He didn't get angry. वो गुस्सा नहीं हो गया, जबकि वो दर्दनाक था। फिर भी उसने क्या किया? वो और 7 साल मेहनत किया। और जब 7 साल के बाद जब अपने मामा से वो विदाई ले रहा था, when he was telling bye to his uncle after 7 more years, means after 14 years, getting Rachel according to the promise of his uncle, उसके अंकल लामान ने उसको जो है 14 साल मेहनत करने के बाद उसको रेचल को दे दिया। पहले 7 साल के बाद लिया, उसके 7 साल के बाद रेचल उसको दे दिया। और उस वक्त जब याकूब वहां से निकल रहा था, when Jacob was leaving from his uncle's house, his uncle came and pleaded him, do not go from here because I was blessed because of you. उसका मामा उसको बोल रहा है, मैं विनती करता हूं यहां से मत जाना क्योंकि मैं तेरे वजह से बरकत पाया। Laban is telling, because of you I was blessed. I have seen blessing because of your presence here. मैं तेरी हुजरी के वजह से, मैं तेरे जरिए से मैं अपने जीवन में बरकत को देखा, वो कह रहा है। See, he cheated him, but now he's confessing that he was blessed because of Jacob. वो उसके साथ धोखा किया, लेकिन अभी वो समझ गया, अभी वो देख रहा है, वो बोल रहा है कि उसको आदर दे रहा है, वो उसको रेस्पेक्ट दे रहा है, बोल रहा है कि तेरे वजह से मुझे बरकत। देखिए, हम जब सब कुछ सही करते रहते हैं, see, when we continue to do what is right, even though it is painful, their eyes will be open. उनकी आंखें खुल जाएंगे। और लबान जो कि याकूब को 14 साल सताया, अभी वो उसको रेस्पेक्ट दे रहा है। Laban who cheated Jacob for 14 years, now his eyes were open and he is respecting and is giving honor. How did it happen? If he would have stopped, if he would have fought with his uncle, if he would have put a case in the court, what would have happened? अगर वो अपने मामा के साथ झगड़ा किया होता, अगर वो अपने मामा को जाके कोर्ट में केस कर दिया होता, अगर वो अपने मामा के लिए बुरा भला सोचा होता, क्या वो सेवा कर पाता? क्या ये आदर उसको मिल सकता? Never. His uncle wouldn't be able to respect him. Rather, he would have lost his blessing. And because he remained faithful, because he was consistent in serving, and because he did what is right instead of it was painful,
जबकि वो सब कुछ दर्दनाक होने के बावजूद भी वो अच्छा करता रहा, जबकि वो लगातार सेवा करता रहा। आपको पता है, सिर्फ लाबान ने ही उसका आदर नहीं किया, परमेश्वर ने भी उसको आदर किया। Not only Laban, his uncle, respected him, but also God honored him. Did you know that? God changed him from Jacob to Israel. परमेश्वर ने उसको याकूब से इस्राएल बना दिया और उसके नाम से आज एक देश है। And in his name now today we have a country. And not only that, Jacob, the meaning of Jacob was cheater. Now his name was become chosen. उसका नाम जो धोखा देने वाला था, उसके साथ धोखा किया गया, लेकिन उसके साथ धोखा किया जाने के बावजूद भी जब वो अच्छा ही करता रहा बुराई के बदले में, उसका नाम भी बदला गया, उसका पहचान बदल दिया गया। याकूब का नाम का मतलब था धोखा देने वाला, लेकिन उसका नाम इस्राएल रखा गया जिसका मतलब चुना हुआ। उसके साथ साथ उसका पहचान ही बदल गया। और अपने बड़े भाई को जिसने वो धोखा दे के भाग आया था, एंड to his elder brother Esau that he had cheated and ran from his house, now he was able to go back to his elder brother. और अभी उसके बाद वो अपने बड़े भाई के पास वापस मिलने के लिए जा रहा है। और उसका बड़ा भाई पहले जब उसने धोखा दिया था तो वो उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था, वो बहुत गुस्से में था। His elder brother he was in very much anger and he was looking for him to kill. But now when he spent 14 years in serving, 14 years of doing what is right, 14 years of not demanding what he deserved, now he had a very, very blessed reconciliation with his elder brother. 14 साल तक उसने सेवा करने के वजह से, 14 साल तक जो जिस बात की वो लायक था उसको वो डिमांड ना करने के वजह से, 14 साल तक जो सही है वही करने के वजह से, उसका और उसके बड़े भाई के बीच में जो मिलाप हुआ था वो बहुत ही सुंदर था। और ईसाऊ और याकूब का जब मुलाकात होता है, वहां पे झगड़ा नहीं होता है, पुरानी बातों को याद भी नहीं किया जाता है, लेकिन वहां पे अच्छी मुलाकात। When Esau and Jacob they met, Esau did not even scold him. Esau didn't even get angry on him. Esau did not even remind anything that he did, that he stolen his blessings from his father. No, but it was a time of blessing. ईसाऊ ने उसको कुछ भी नहीं किया, लेकिन दोनों की मुलाकात खुशी से हुई। जबकि ईसाऊ का बरकत जो है याकूब ने चुरा कर ले गया था, आप सबको पता है। Let me tell you something. We have some bad past. हमारे जीवन में हम गलती किए होंगे, लेकिन हमें दोबारा गलती को दोहराते नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें नम्र हो जाना चाहिए। We might have done wrong in our lives. We all are sinners, but it is a time for us to continue to live in humility. Then what happens? We will be honored. हमें प्रभु आदर देगा और उसी आदर से ही हम खुश रह पाएंगे। और उसके बाद याकूब क्या होता है? याकूब खुशी के साथ जीवन बिताता है। आपको पता है, याकूब धर्मी व्यक्ति बन के गिना गया। We know that Jacob was counted as a righteous man, and God, when he is addressing himself, he said, I am the father of Abraham, Isaac and Jacob. और परमेश्वर जब अपनी पहचान देता था, वो कहता था, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आपको पता है, याकूब इतना बरकत वाला बन गया, और उसके बाद यूसुफ भी बरकत वाला बन गया। लेकिन परमेश्वर ने मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ का परमेश्वर नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। God is identifying himself, addressing himself as the father of Abraham, Isaac and Jacob. Why did it happen? Jacob truly walked in humility. याकूब ने नम्रता के साथ चला। वही काम यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिखा दिया। वो भी खुद स्वर्ग को छोड़कर, उसने कोई गलती नहीं की थी, वो हमेशा धर्मी था, धर्मी है और धर्मी रहेगा, लेकिन वो हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। अगर आज हम उस यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम भी धर्मी रह पाएंगे और उसके समान नम्र बनेंगे। If we receive Christ Jesus today, who left his heaven, who came and chose to be humble, who gave his life for us, who became the true model of humility, then we will be able to walk in humility. Let me encourage you today that do not demand what you deserve and continue to serve. Look for opportunity to serve. Look ways to serve and continue to do good even if it is painful. आप किस बात के हकदार है उसका आप दावा ना करें। आप
अपॉर्चुनिटी ढूंढे, मौका ढूंढे, रास्ता ढूंढे, किस तरह आप सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। मदद करने से भाग नहीं जाना, छुप नहीं जाना, और दर्दनाक होने के बावजूद भी भला ही करते रहना। रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय उसके 21 आयत में लिखा गया है। We read it in book of Romans chapter 12 verse 21. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. वहां पे लिखा गया है बुराई से हार नहीं जाना, लेकिन भलाई से बुराई को हराना। Even if it is painful, दुख सहना पड़े, दर्द सहना पड़े, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, वही तो आपकी अपॉर्चुनिटी है बरकत को लेने का। That is your opportunity to be a blessing. Don't call yourself blessing if you have millions of dollars, but if you are a blessing to others, then you are blessed. आपके पास अगर लाखों करोड़ों डॉलर पैसा होगा, आप ब्लेस्ड नहीं है, लेकिन अगर दूसरों के लिए आप बरकत बनते हैं, तब ही आप ब्लेस्ड है। क्या आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं? हम्बल हो जाइए। Do you want to be blessed? Be humble. Let us close our eyes and ask the Lord to be humble like Jacob, to be humble like Jesus our Lord. आइए हम अपने आप को बंद करें और प्रार्थना करें कि हम याकूब के समान, यीशु मसीह के समान, जो हमारा परमेश्वर है, उसके समान हम नम्र हो जाएं। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, तेरी पवित्र आत्मा हमें नम्र होने के लिए हमारी मदद करे। Lord, we pray that may your Holy Spirit enable us to be humble, that we will not demand what we deserve. प्रभु जी, हम उस बात की हम दावी नहीं करेंगे कि हम क्या सोचते हैं कि हम किस बात के लायक है, किस बात का हकदार है। Lord, we look for ways to serve. प्रभु जी, हम रास्ता ढूंढेंगे, अवसर को ढूंढते रहेंगे कि किस तरह हम दूसरों की मदद करें और सेवा करें। And Lord, we'll continue to do good even if it is painful. परमेश्वर, हम लगातार अच्छा ही करेंगे, भला ही करेंगे, जबकि हमें दुख सहना पड़े, दर्द सहना पड़े। Because oh Lord, you are our model. क्योंकि प्रभु यीशु, तू ही हमारे लिए एक नमूना है। तूने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ा, तूने हमारे लिए सब कुछ, सब दुख सहा और हमें स्वर्ग का नागरिक बना दिया। Lord, you left your kingdom, you left heaven, came down to this world, you took the form of man and you took our suffering so that we become the citizen of heaven. Lord Jesus, I pray that every one of my friends who are watching me right now, they would commit themselves to be a man and women of humility. प्रभु जी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं वो सब नम्रता के भाई और बहन बनेंगे, नम्रता के साथ जीवन बिताने वाले, ताकि परमेश्वर ये दुनिया में हम यीशु मसीह को दिखा सके। So that, Lord, we'll be able to show Christ Jesus in this world today. Thank you for blessing us. I pray for those who are going through difficulty, challenges, sickness and pain. Touch them and heal them and give them your blessing. प्रभु जी, हमें प्रार्थना करता हूं जो आज दुखी है, तकलीफ में है, परेशानी में, बीमारी में, उनको छूकर तो चंगा कर और शांति दे। इन जीसस नेम, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आशा करता हूं कि हम आज इस वचन के जरिए से ये बात को दिमाग से निकालेंगे नहीं कि हमें नम्र होना है। I believe and I hope that we will not forget this thing, that we have to be humble. May the Lord bless you abundantly and may the grace of the Lord be with you. परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बरकत दे और प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। God bless you. प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे।